Yesterday we have already explained or see the explanation of poem 4.1 The World is Mine. Now today we will solve some of its English workshop activities This and see lecture is presented what by has given in Naikwadi the Azhar Rahman from RC questions. Mahim Municipal First of Secondary all, there are School. some Thank you. meaning of difficult words. I am explaining you. Envy means was jealous of, means हसद करना, जलना किसी से. Hobble means walk with a limp unsteadily. अपाहिज पैर से लंगड़ा के चलना उसको कहा जाता है hobble. Hazel means passage between two rows of seats, and whine means complain in a crying tone. So in this way there are some meanings. Now the question first is, describe the young girl in the bus. How was the girl alike in the bus? What was her face? So here in the first line you can see the answer of it. I saw a lovely, the girl was lovely with silken hair, but she was hobbling. So in this way you can write, she was a lovely and with silken hair. The girl was in a silken hair. Now what did the speaker in the poem not realize while chatting with the young lad? स्पीकर के क्या समझ में नहीं आया जब उसने उस लड़के से बात की, उस यंग लड़के से, तो उसके क्या समझ में आया? What did speaker realize? So in this second stanza I think, I stopped by some sweets. The lad who sold them had such charm. I talked with him. He seemed so calm, and if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you. You have been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, I am blind. She realized that when he said that he was blind. So you can write this answer in this way. What did the speaker in the poem not realize? She did not realize that the young lad was blind. Why did the blue-eyed boy not join the others in their game? Because he was unable to hear anything. He was a deaf boy. What does the speaker thank God for? Why she thanks to God? She thanks to God because the world is her, and she has got everything from the God, all the blessings, whatever the man needed, the human being needed, everything she is having. That's why she is saying thanks to the number 1. Complete the following after reading the poem. We have to read once again the poem and we have to complete all these sentences and fill in the blanks. A. The beautiful woman passed with a, जो खूबसूरत औरत थी वो कैसे गुजर गई वहाँ से, बस से जब वो उतरने के लिए खड़ी हो गई अपनी सीट के दरमियान, तो विथ हॉबल. क्या लिखेंगे पहले इसमें? पहला जो ब्लैंक है उसमें आएगा हॉबल, HOBBLE. पोएम में भी आपको ये वर्ड मिलेगा. बी blank is there, B fill in the blank. The poet wanted to buy from the lad sweets. उस बच्चे से वो क्या खरीदना चाहती थी पोएट हमारी? Yes, sweets खरीदना चाहती थी, मिठाई. So in the B, the right answer is sweets. C, the poet told the boy to join others to play, but he couldn't. पोएट ने कहा उस लड़के से कि वो उनको ज्वाइन करे, वो क्यों नहीं खेल रहा उनके साथ, वो क्यों इतना दूर खड़ा हुआ है बाकी बच्चों से. But he couldn't hear him. वो लेकिन उसको सुन सकता था क्या? वो नहीं, उसने कोई जवाब नहीं दिया. तो यहाँ पर भी आप इसका आंसर देख सकते हैं स्टांजा में, दूसरे या तीसरे स्टांजा में इसका आंसर आपको मिलेगा. I stopped a moment, थर्ड लाइन पढ़ रहा हूँ मैं. I stopped a moment, then I said, why don't you join the others dear? He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था. फिर बाद में उसको पता चली बात. couldn't hear. The poet request dash to forgive him. किससे रिक्वेस्ट की पोएट ने कि उसको माफ़ कर दे? Yes, very good. God, God, G is capital there. God will come. So these are the fill in the blank in activity number 1. Now we will go through the activity number 2, that is match the following. We have to match the following A column with B. The beautiful girl.
सही आंसर इसका क्या आएगा, नंबर 4, हैड हैंडीकैप्ड इन हर लेग्स, वो पैर से जो है अपाहिज थी। द लैड हु वॉज सेलिंग स्वीट्स, वो लड़का जो स्वीट बेच रहा था। ही कैन एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड गिफ्ट्स ऑफ हिज लाइफ, वॉज हियरिंग इम्पेयर्ड, वॉज वेरी थैंकफुल टू स्पीकर इन द पोएम। हाँ, वो जो है बहुत ही शुक्रगुजार था पोएट का कि उसने इतनी देर रुक कर उससे इतने अच्छे से बात की। तो बी का सही आंसर आएगा 3rd। सी है द चाइल्ड वॉचिंग अदर्स प्ले, 2nd नंबर आएगा इसका। वॉज हियरिंग इम्पेयर्ड, जिसको सुनने में परेशानी थी, तकलीफ थी। द पोएट सेज द वर्ल्ड इज माइन बिकॉज ही कैन एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड गिफ्ट्स ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ। इस तरह से जो है ये हमने मैच द पेयर किया। नीचे आप लिख सकते हैं ए के साथ जो है नंबर 4, बी के साथ जो है ए के साथ आएगा नंबर 4, बी के साथ आएगा नंबर 3, सी के साथ आएगा नंबर 2 और डी के साथ आएगा नंबर 1। या नंबर 3 एक्टिविटी इज देयर। व्हाट डज द पोएटेस मीन व्हेन शी सेज द वर्ल्ड इज माइन? एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइटल विथ रेफरेंस टू द पोएम। पोएम का रेफरेंस लेकर द वर्ल्ड इज माइन क्यों कहा पोएट ने, इसके बारे में खुलासा करना है। व्हाट डज द पोएटेस मीन व्हेन शी सेज, तब यहाँ पर वर्ल्ड इज माइन का मतलब क्या है? क्या वो पूरी दुनिया की रानी बन गई, क्या क्वीन है क्या वो? नहीं, बट द वर्ल्ड इज माइन हियर मीन्स शी वॉन्टेड टू गिव हर थैंक्स टू द गॉड बिकॉज शी इज़ हैविंग एवरीथिंग वॉट एवर अ ह्यूमन बीइंग नीडेड। बेसिकली इंसान को जो चीज़ें चाहिए अल्लाह ताला ने उसको सब उन तमाम चीज़ों से नवाजा था, इसलिए वो इस तरह से कह रही है कि द वर्ल्ड इज़ माइन, ये दुनिया मेरी है। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर इन योर ओन वर्ड्स। What is the theme of the poem? Always thankful to the God. I think so. B. Do you think people with some handicap should be beg for money? Justify your response. जो हैंडीकैप होते हैं क्या उनको भीख मांगनी चाहिए क्या? No. They can also get some chances or opportunities to prove themselves. उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपने आप को प्रूफ कर सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो हैंडीकैप है वो भीख ही मांगे। इस तरह से हम उसके बारे में कह सकते हैं। व्हाट इज़ बेटर, अच्छा क्या है? इन द सोसाइटी एवरीवन गॉट द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड द इक्वल स्टेटस इज द बेटर थिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। व्हाट इज़ बेटर, टू completely take over the work and responsibility of disabled person in order to help, or encourage such a person to do it himself or herself in a different way? Justify your choice. Which choice you will be select in the C question, 1 or 2? पहला क्या है, to completely take over the work and responsibility of disabled person in order to help उसकी मदद करने की बजाय पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारियों को उठाना और उसको पूरी तरह से जो है खाली कर देना और सारे काम उसके खुद कर लेना, ये, या इनकरेज या उनको हिम्मत अफजाई करना सच अ पर्सन, ऐसे इंसान की जो हैंडीकैप है, टू डू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि वो खुद से करने की कोशिश करे इन अ डिफरेंट वे, कुछ अलग अंदाज में, मुख्तलिफ तरीके से। तो ये क्या, ये दोनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? यस, 2nd नंबर। वी हैव टू एनकरेज देम एंड वी मस्ट ट्राई टू डू देयर वर्क विथ देयर ओन। हम ये कोशिश करें कि वो खुद से अपना काम करने की कोशिश करें, क्योंकि हर बार हम उनकी जो है जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। या दिस इज़ द राइट आंसर। मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। फॉर एग्जाम्पल वाइन, माइन। अब इसी तरह से दूसरे जो राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं वो पोएम में से हमको लिखना है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे अगर वाइन और माइन उसने दिया हुआ है तो आगे पहले स्टांजा में है हेयर और फेयर, चार्म और हार्म, काइंड और ब्लाइंड। उसी तरह से ब्लू डू, डियर हियर, गो ग्लो नो। इस तरह से जो है आप यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। इसके राइमिंग वर्ड्स लिखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट पेज पर, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 2 स्टांजा इज़। पहले 2 स्टांजा की राइमिंग स्कीम कैसे बनेगी इसमें, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले 2 स्टांजा जो हैं, पहला जो वर्ड है हेयर है तो इसको ए देंगे, फेयर है, दोनों हम आवाज़ है हेयर और फेयर तो ए आएगा। एजल है उसके बाद तो बी देंगे, वाइन है तो उसको सी देंगे, और माइन है तो वो भी सी के आवाज़ से मैच कर रहा है वाइन से,
इसलिए उसको भी सी देंगे, तो राइमिंग स्कीम बनेगी ए ए बी सी। और उसी तरह से स्वीट्स ए, चार्म बी, हार्म भी बी आएगा, काइंड सी, ब्लाइंड सी, और उसके बाद क्या है वाइन और माइन, तो इसको देंगे हम डी डी। तो इस तरह से दोनों स्टांजा की राइमिंग स्कीम रहेगी। पहले स्टांजा की राइमिंग स्कीम रहेगी ए ए बी सी सी, और दूसरे स्टांजा की राइमिंग स्कीम रहेगी ए बी बी सी सी डी डी। इस तरह से जो है आपको राइमिंग स्कीम लिखना है। उसी तरह से थर्ड स्टांजा की भी देखते हैं। ब्लू डू ए ए, डियर हियर बी बी, वाइन माइन सी सी। तीसरे स्टांजा की ए ए बी बी सी सी। गो ग्लो नो ए ए, 3 बार आएगा, वाइन माइन बी बी, ए बी बी, ए बी बी। इस तरह से इसकी